توجہ انسان جسم کے اعتبار سے انسان ہوگا لیکن اندر سے وہ شیطان بن چکا ہوگا. دیکھو سفید کپڑے, قیمتی کپڑے, سفاری سوٹ, خوبصورت بائک, یہ وہ سب کچھ ہے لیکن اندر سے شیطان ہے, چل رہا ہے تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے, اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے, لوگوں کو قتل کے منصوبے بنا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی رقم کے عوض ایک دوسرے کی سپاری لے رہا ہے, ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. بلکہ اب تو ایک عجیب سی وبا چل پڑی ہے. کیا وبا چل پڑی ہے؟ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے, زہر کھلاتے تھے, اب لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا تو جادوگروں کے پاس جا کر کے لوگوں کو جادو کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, سحر کر دیتے ہیں, بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا, قلوب ان کے شیطانوں کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا, اب اس پر بھی ذرا دیکھو, وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے, وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. آپ سے بات کہتا ہوں, بوڑھا کوئی بھی ہو, سفید داڑھی والا, سفید جس کی داڑھی ہو جائے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں جس کو بڑھاپا آیا اس کی تعظیم وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اور ایک بات, ایک حدیث سن لو, بہت خوبصورت. فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. کوئی عام بوڑھا تمہیں مل جائے, عام بوڑھا جو جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا, تو اس کا احترام گویا کہ اللہ کا احترام ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے احترام کا مطلب کیونکہ اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے, تو اللہ کا گویا کہ احترام ہے. وہ عام بوڑھا مل جائے جس کو اسلام میں بوڑھا, تو جس سے کوئی رشتہ نہیں, اس کا احترام اتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا احترام کتنا اہمیت رکھتا ہے. واہ 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 واہ. جب کسی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی دعا رد کرنے میں حیا فرماتا ہے, اور جب کسی کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں, اب اس کے گناہ لکھنا بند کر دو. سفید داڑھی والوں کا احترام کیا کر, لیکن سفید داڑھی اس کی جس کی عمر کی وجہ سے ہوئی, نہ کہ شیمپو کی وجہ سے سفید ہو گئی. کیونکہ آج کل داڑیاں تو شیمپو اور صابن اور کیمیکل کی وجہ سے سفید ہو رہی ہے جلدی جلدی. عمر کی بات کر رہا ہوں, عمر کی, تو ان کا احترام کر. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, اگر کوئی بوڑھا آگے چلتا اس کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے صحابہ. یہ دور تھا. اور آج تو بڈھوں کا مذاق کرتے ہیں. کئی بوڑھے ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور کئی جوان ایسے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے, وہ دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اتنی انانیت اور شیطنت بھری ہوئی ہے. احترام بڑوں کا گیا, تعظیم گئی بڑوں کی, سب اٹھ گیا, چھوٹوں سے شفقت اٹھ گئی, بڑوں کا احترام اٹھ گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے. سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے سلمان, اللہ کی عزت کی قسم, مسجدیں ایسی خوبصورت سنواری جائے گی جیسے کنیسہ گرجا سنوارے جاتے. جیسے گرجا یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانے جیسے سنوارے جاتے ہیں, ویسے مسجدوں کو سنوارا جائے. حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے, کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے, کچھ قیامت کی نشانیاں تباہ کن ہے. تو جیسے حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانی ہے, بولو یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ امام مہدی کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی یہ مت اس کو رنگ مت دیجیے گا. تو مسجدیں سنواری جائے گی, سجائی جائے گی, قرآن آراستہ کیا جائے, قرآن کو سونے کی حروف پانی سے لکھا جائے, قرآن سجایا جائے گا, سجا کر قرآن کو جو ہے وہ چھاپا جائے گا, لکھا جائے گا. اور فرمایا اللہ اکبر, بڑے اونچے ممبر بڑے اونچے بنائے جائیں گے مسجدوں میں. اور والدین کی حق تلفی کی جائے, دوستوں سے پیار کریں گے, ماں باپ سے نفرت کریں. قیامت کی نشانی. جب بھی پارٹی میں جائیں گے, 2 دوست 4 دوست 6 دوست, جہاں چائے پیے سب جیب سے پیسہ نکالیں, میں دوں گا. یہ باہر دوستوں میں بل کون دے گا پارٹی کا؟ میں. چائے کا بل کون دے گا؟ میں. آئس کریم کا بل کون دے گا؟ تاکہ لوگ بولے یار کیا ہمارا دوست ہے. اور گھر میں باپ بیمار پڑا تو وہ باپ بیٹا کہے گا تو دینا, تو بیٹا نہیں ہے, تو بیٹا نہیں ہے, تو دینا, تو بیٹا نہیں ہے, تو دینا, تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرا باپ. کیسا دور آیا. بچپنے میں جب بچے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میرا باپ, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو
तो तेरी माँ तेरा बाप, क़यामत की निशानी। दोस्तों से प्यार करेंगे, माँ बाप से नफरत और अदावत करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह अकबर, बद मजहबियत की कसरत हो, बद मजहबी की कसरत हो, लोग अलग अलग बातें करेंगे, यानी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी, कुछ का कुछ उठाकर लाएंगे, ये हाल होगा। अब आप देखो, बाप दादाओं ने कभी नहीं सुना था कि जो मज़ारात के अंदर सो रहे वो मिट्टी का ढेर है, कभी नहीं सुना, बल्कि जो मज़ारात में सो रहे उनको अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी जाना जाता था, लेकिन हो रही क़यामत की निशानी है। फिर सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ऐसा होगा? मेरे आका फरमाते सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम, मशरिक और मगरिब से कुछ लोग आएंगे जो मेरी उम्मत पर हुकूमत करेंगे और वो कमजोर लोगों को दबाएंगे। सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? कहा अल्लाह की तरफ से हलाकत है उनके लिए। फिर कहा हुजूर ऐसा होगा? कहा अल्लाह की कसम सलमान, हाल ये होगा कि झूठ बोलना, लोग मजाक में भी झूठ बोलना सीख लेंगे, हालांकि झूठ बोलना मजाक में भी हराम है, झूठ बोलना मजाक में भी हराम है। आका फरमाते मजाक में झूठ बोला जाएगा। फरमाया ज़कात को तावान समझा जाएगा, ज़कात तावान समझी जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी। और फरमाया सूद का बाजार गर्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे को असली कीमत से ज्यादा उधार दे करके धंधे चलाएंगे। ये तो आज आप देख लें, असली कीमत से ज्यादा उधार देकर धंधे चलाएंगे, रिश्वत आम हो जाएगी, सूद का बाजार गर्म हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह अकबर, ज़कात को तावान समझा जाएगा। फरमाया औरतों के साथ बदकारी करेगी। अब इसको जल्दी जल्दी बगैर तफसीरे के सुन ले। औरतों के साथ बदकारी करेगी, मर्दों के साथ गलत काम बदकारी करेंगे। याद रखना, ये नौजवान लड़के खास तौर पे सुन ले, आजकल दोस्ती, हुजूर ने फरमाया नौजवान लड़कों से दोस्तियां इसी बुनियाद पे की जाएगी, उनके हुस्न की बुनियाद पे, उनके जमाल की बुनियाद पे। जैसे औरतों पर गैरत की जाती है वैसे लड़कों पर गैरत की जाएगी, जैसे औरतों से मंगनियां की जाती है वैसे नौजवान छोकरों के साथ यानी मंगीतरों वाला सलूक किया जाएगा। लेकिन वो नौजवान कान खोल के सुन ले, मर्द के साथ बदी करना ये ज़िना से भी बदतरीन अमल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है और करीब होता है कि आसमान टूट करके उन पर गिर जाए। फरिश्ते आसमान के किनारे पकड़कर कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत शुरू करते हैं और उनके कुल हु अल्लाह पढ़ने की बरकत से उनसे अजाब रुक जाता है। फरमाया गया जो मर्द के साथ बदी करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मर्द के साथ बदी करता है, जब वो मरेगा तो कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेगा और वो मर के कहीं भी दफन होगा तो कौम लूत पर जहां अजाब आया था वहीं ले जाकर के उसको डाल दिया जाएगा, कहीं भी मरेगा उसको वहीं ले जाकर के फेंका जाएगा। खुदा के लिए ये सब कयामत की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दिनों वक्त से बरकत चली जाएगी, वक्त से बरकत चली जाएगी, दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मगरिब की तरफ से सूरज निकलेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानी है। लोग जमीन में धंस जाएंगे, अल्लाह अकबर, सुर्ख आंधियां चलेगी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया फिर महदी का ज़हूर होगा। इस पे मैं अपनी बात को तमाम करता हूं। फिर महदी का ज़हूर होगा, वो मोहम्मद महदी होगा, उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसके अब्बा का नाम मेरे बाबा के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उसकी अम्मी का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वो जो है वो दरमियानी कद वाला होगा, उसका गंदुमी चमकदार रंग होगा, उसके दाएं रुखसार पे तिल होगा। अल्लाह अकबर। वो 40 साल की उम्र में लोगों को आशूरा की शब में बयात करेगा। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, लोगों को कयामत की इतनी जल्दी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हर दिन खबर आती है कि मेहंदी आने वाले हैं, बस 2 साल में आने वाले हैं, बस 10 साल में आने वाले हैं, 50 साल में आने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा बिल्कुल जब कयामत करीब आ चुकी रहेगी, यानी महदी आए फिर कयामत आई, बस इतना। यानी कि ये समझ ले इमाम महदी के बाद
दुनिया निस्फ सदी तक भी नहीं रहेगी और फिर इमाम महदी के बाद जो है क़यामत आ जाएगी। और ये इमाम महदी कब आएंगे? जब इस्लाम सिमट कर ऐसे हिजाज की तरफ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल की तरफ आता है। लोगों को अभी कहां महदी महदी इमाम महदी जब आएंगे वल्लाह वो आएंगे, वो अजमत वाले हैं। इसीलिए कभी हैदराबाद से कोई कहता है मैं महदी हूं, कोई औरंगाबाद से कहता है मैं महदी हूं, कोई लाहौर से कहता है मैं महदी हूं। मैं कहता हूं पठानों के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, चंगेजों के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, किसी ऐरे गहरे के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, किसी और बिरादरी में थोड़ी महदी आएंगे। हुजूर ने कह दिया जो महदी आएगा वो फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद में से होगा, वो इमाम हसन का बेटा होगा। फरमाया अल्लाह की कसम अगर एक दिन भी क़यामत को बाकी रह जाए तो मेहदी आ करके रहेगा, महदी के आए बगैर क़यामत नहीं आएगी। यहां पहुंचकर मेरा दिल कहता है लोगों तुम रसूल अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना करना चाहते हो, तुम नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम अली की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हसन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हुसैन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम गौसे पाक और गरीब नवाज की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो। नबी का बेटा एक महदी ऐसा बेटा है कि पूरी उम्मत को यकीन है जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। नबी के एक बेटे ने क़यामत को रोक रखा है। जब एक बेटे की शान का याद, जब एक बेटे की नबी के एक बेटे ने क़यामत को रोक रखा है, जब एक बेटे की ये शान का आलम है तो हजरत तकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत नकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत हसन अस्करी की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा। तो इमाम महदी के रुखसार पे, दाएं रुखसार पे तिल होगा। ये बात भी बता दी गई। इमाम महदी कब आएंगे इसको हतमी तौर पे कोई सन नहीं बताया गया। कुछ लोग यूट्यूब पे आके भी कहते हैं वो पैदा हो चुके फला शहर में, यहाँ है वहाँ है वहाँ है। लेकिन याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इब्ने हजर ने यही लिखा, अल्लामा सुयूती ने लिखा और हमारे अक्सर बुजुर्गों ने लिखा, साहिब सवाइकुल मुहर्रिका इब्ने हजर ने यही लिखा। वालिद का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमिना और हजरत उनको महदी कहा जाएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी जुल्फें होगी। बल्कि यहाँ तक फरमाया उनकी ज़बान में हल्का सा भारीपन होगा उनकी, और वो नॉर्मल आदमी की तरह तकरीबन कमोबेश 30-40 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे। एक ही रात में, सिर्फ एक ही रात में उनके हालात बदल जाएंगे। एक रात में सारे उलूम अल्लाह उनके सीने में उंडेल देगा। एक ही रात में, एक ही रात में सारे उलूम उनके सीने में उंडेल दिए जाएंगे और फिर ज़माने में इनकलाब आएगा। मज़ीद जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब है, बड़ी बातें हैं जो कुछ बयान किया गया। अल्लाह ताला कबूल